हां. आवाज क्लिअर ऐकू येतोय सगळ्यांना? येस सर. ओके. हो. तर लास्ट टाईम आपण टेबल कसं करायचं हे बघितलं होतं. ओके. हाऊ टू क्रिएट अ टेबल इन अ फाइल. नाऊ वी आर ऑन फर्स्ट पेज. हाऊ टू गो टू द लास्ट पेज डायरेक्टली? गुड मॉर्निंग. लास्ट पेज पे कैसे जाना है? हम्म. इसमें कितने पेजेस कितने हैं पहले बताओ. नंबर ऑफ Sir, पेजेस 32. 32. So now I am on page number 1. I want to go to the last page. How to go? Using keyboard. Sir, end key na. Okay, I am pressing now. Now I am here. See, this cursor is here. Now I am pressing end key. किधर है? हाँ. Yes. See, it is not doing anything. See here. Here also. देखो यहाँ पे रख दिया मैंने कर्सर और end किया. End. What happens? It goes to the ending of that sentence. मुझे end of the document पे जाना है. कंट्रोल डी. कंट्रोल डी. कंट्रोल डी किया तो ये ऐसे हो रहा है. देखो, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आता है. कंट्रोल और एंड क्या ना करना पड़ेगा. एंड सही है, लेकिन इफ यू प्रेस एंड इट गोज टू द एंड ऑफ द सेंटेंस. आई वांट टू गो टू द एंड ऑफ दिस डॉक्युमेंट. दॅट मीन्स लास्ट पेज. तो Shift plus end, sir. शिफ्ट प्लस एंड हे नवीन शोध लावलेला आहे कुणीतरी. कंट्रोल प्लस एंड का सर? Sir, control plus end. येस, व्हेरी गुड. तरी पण हा शोध चांगला आहे असं मला वाटतंय. मी आल जस्ट चेक. Sir, मग starting मध्ये वाव, मराठी गुड. सांगितलं ना तुम्हाला. अरे सिलेक्ट होतंय शिफ्ट एंडमुळं. मला पण माहित नव्हतं हे. बघा, मी वाक्याच्या सुरुवातीला दिस आय एम पुटिंग द कर्सर हिअर. वर्ड प्रोसेस सुरुवातीला आणि देन आय एम प्रेसिंग शिफ्ट अँड एंड. इट इज सिलेक्टिंग. का असं होत असेल सिलेक्ट? Sir, तुम्हाला तेच सांगितलं होतं ना. दिखताय? हां. अरे ते सांगितलंस, पण मला शेवटच्या याला जायचं आहे. सिलेक्शन नाही करायचं आहे. आय वॉन्ट टू गो टू द लास्ट पेज. सो आय नीड कंट्रोल एंड. कंट्रोल एंड. कंट्रोल एंड. बघा, लास्ट पेजवर येतं असं. दिस इज द लास्ट पेज. कसं डिटरमाइन करायचं की हे लास्ट पेज आहे? सर टेबल्स लास्ट होते ना. टेबल लास्ट होतो असं नाही. इथे बघायचं. इथे बघा, स्टेटस बारवर इथं पेज 30 ऑफ 32 असं दाखवते. त्यावेळी ते लास्ट पेज आहे. किंवा तुम्ही स्क्रोल आणि अपडाऊन असं केलं तर हे शेवटचं पेज असं कळतं इथे तुम्हाला. ठीक आहे. चला, कंट्रोल आणि स्क्रोल केलं की अशा पद्धतीनं हे झूम होतं. ओके, हे झालं. आता हे टेबल मला डिलीट करायचं. हाऊ टू डिलीट टेबल? सिलेक्ट अँड डिलीट. सी, alt. Okay, alt shift. Okay, I'm selecting first. Alt shift and delete, or D. D. See. Alt. Okay, only shift D. Okay. Shift D. It doesn't do anything. Actually, when you want to delete the table, you can delete that other text like that. But here, if you want to delete this table, you should always go to table tools here. You have layout option, and here you have delete table. Only this deletes table. Only for table it have. If you want to delete the table structure, you need to go to this. Yeah. No other option. For table, you should go like this only. All right. So last time you understood how to create table. I'll just recap it and then we'll understand other things. So I'm taking a new page here. How to take new page? I want a new page here. त्यांना बसायचं तर बसू देत, वेळ असेल तर. हां. हां. ओके. इंसर्ट ब्लैंक पेज. सही है आंसर. ब्लैंक पेज. और यू कैन डायरेक्टली एंटर, प्रेस एंटर की. देखो, फिर टेबल लेना है तो यू शुड गो टू इंसर्ट. हियर यू हैव टेबल and here you can select cells. First cell, second cell, third cell. You can see on page there are cells in this way. So when you put all the cells horizontally, it becomes a row. एक लाइन तयार होते अशी. And if you want to create a column, see in this way. Column हवा असेल तर you should
go like this. See, I am putting cells vertically, so it becomes columns. Second column, third column, in this way it goes. If you want more number of rows and columns, you can directly go to insert table here, and number of columns डालना है 10 or whatever you want need, number of rows 5, then press OK. You get a table. Now sometimes first row you can write heading of your table here. So we need to take out all the partition from these cells. How to take it? How to do it? Merge cells, right? So select the cells or select the row, then go to layout, and here you have option merge cells. Merging, it is called merging. In this way you can merge any number of cells. So if you want design like this, you want to merge these cells, select the 4 cells, then go to merge cell. It is here in layout. Now if you want the merge cell to split again, इसमें और ज़्यादा सेल्स बनाने हैं तो कैसे करेंगे? देर इज वन. हाँ, Split table. स्प्लिट टेबल और स्प्लिट सेल्स. So split cell. स्प्लिट सेल्स. तो इफ आई वांट टू स्प्लिट दिस सेल, अब ये क्या किया था, 4 सेल्स थे उसमें से मैंने एक बनाई, तो एक सेल की मोर सेल्स यू कैन क्रिएट. To do that, you should go to this split cells. Here, tell how many number of columns you want here. Actually, here we have 2 columns, 1 and 2, and 2 rows are there. So if you want more columns, here you can add 4 or 5 columns. Number of rows you can take only 2 here because of this structure. So I'm clicking OK. Now you can see here we got 5 columns here, 1 2 3 4 5, and 2 rows. So number of cells, एक सेल में कितने नंबर ऑफ सेल हो गए यहाँ पे? व्हेरी गुड, 10. तुम्हाला समजतंय का ऑनलाईन जे येत आहेत त्यांना? Yes, sir. गॉट इट. Yes, sir. ओके, हे स्प्लिट टेबल काय करतं? स्प्लिट टेबल, तो टेबल का वो ब्रेकअप करता है, वही ना? Create होता है. डोंट यूज दैट. ठीक है, चलो इसका ब्रेकअप कर देते हैं. 1 2 3 4 5, 5 रोज है. विल क्रिएट वन टेबल ऑफ 3 रोज एंड सेकंड वन ऑफ 2 रोज. तो जहाँ से आपको उसको कट करना है वहाँ पे कर्सर कहीं पे भी रखो इन दैट रो, एंड यू कैन गो टू लेआउट, एंड हियर यू हैव स्प्लिट टेबल. ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये स्प्लिट हो जाता है. ठीक है, बाकी के ऑप्शन हमने देखे हैं ऑलरेडी. So in this way you can create table and you can write information inside it. I have already shared picture in the group, and you should do like that only. Only Kinjal has done it. Everybody should do. ऑल राईट. मग आज आपल्याला काय बघायचं आहे? डिझाईन मेनू. हा डिझाईन मेनू आणि लेआउट. याच्यामध्ये जास्त काही डिझाईन जास्त नसतं, पण फॉर एक्झाम्पल नाऊ आय वॉन्ट टू क्रिएट अ बॉर्डर फॉर दिस पेज, पेज बॉर्डर or page color, we can set it accordingly. Do you know what is header and footer? Header and footer. Hmm. ओके, हेडर एंड फुटर मतलब क्या होता है? देखो, अभी आप कोई भी बुक ले लो, उस बुक में ऊपर चैप्टर नेम रहता है और नीचे पेज नंबर. तो एवरी पेज पे वो चैप्टर नेम रहता है, नीचे पेज नंबर रहेगा या डेट कुछ भी होता. तो आप कैसा करोगे? अभी यहाँ पे टोटल 33 पेजेस है, एंड यू वांट टू राइट chapter name here. For example, now I am teaching you this MS Word, and I want to write on every page on heading MS Word. So how can I write it? Then huh. Yes, I need like that. So how to do it then? That's what I'm asking. बघा काय करायचं आहे आपल्याला, प्रत्येक पेजवर इथं टॉपला हे जे हेडिंग आहे, इथे आपल्याला लिहायचं आहे MS वर्ड. जसं पुस्तकामध्ये प्रत्येक पेजवर हेडिंग असतं, कशाचं चॅप्टर नेम असतं, तसं प्रत्येक पेजवर घ्यायचं आहे आपल्याला. समजा याच्यामध्ये 300 पेजेस असतील, तर हे ॲक्च्युली कसं करता येईल? बघा, पहिल्यांदा MS वर्ड हे टाईप करूया. ओके, हे सेम तुम्हाला प्रत्येक पेजवर हवं आहे. याला तुम्हाला कॉपी करावं लागेल, Ctrl+C कॉपी, किंवा हे कॉपी आहे इथे, आणि मग प्रत्येक पेजवर जाऊन पेस्ट करावं लागेल. असं इथे पेजवर या, इथे पेस्ट करा, पेस्ट.
तुम्ही कितीही वेळा हे पेस्ट करू शकता इझिली, राईट. असं प्रत्येक पेजवर जाऊन पेस्ट करावं लागेल. पण हे 33 पेजेस आहेत, तुम्ही यू कॅन मॅनेज. इफ देर आर 300 पेजेस, 3000 पेजेस, देन हाऊ कॅन यू मॅनेज? तुम्हाला कळतंय काय? ऑनलाईन आहे त्यांना, ऑनलाईन आहे त्यांना कळतंय का? हो सर. हां, Yes, sir. तर मेन काय करायचं आहे, प्रत्येक पेजवर एखादी गोष्ट तुम्हाला हवी असेल तर हाऊ हाऊ टू मॅनेज इट, त्याच्यासाठी आहे हेडर अँड फुटर, जो आहे इथे इन्सर्ट अँड हिअर यू विल फाइंड हेडर पार्ट, हेडर अँड फुटर. तर याच्यामध्ये टॉप मार्जिन जे असतं पेजचं, दिस इज टॉप मार्जिन, दिस इज कॉल्ड हेडर पार्ट ऑफ दॅट पेज. अँड फॉर द अप्पर पेज दिस बॉटम मार्जिन इज फुटर. प्रत्येक पेजला हेडर अँड फुटर असतं. टॉप मार्जिन म्हणजे हेडर आणि बॉटम जो पार्ट असतो याला म्हणायचं फुटर. तर या हेडर किंवा फुटरमध्ये तुम्ही एखादी गोष्ट ठेवली, मग तो शेप असेल किंवा टेक्स्ट असेल किंवा पिक्चर असेल, दॅट विल ॲटोमॅटिकली गेट्स कॉपीड टू एव्हरी पेज ॲटोमॅटिकली. आणि तुम्ही कुठल्याही पेजवर असाल तर चालते. आता मी पेज नंबर, कोणत्या पेज नंबरवर आहे सध्या? पेज नंबर 29. बघा, आता मी ॲक्च्युली पेज नंबरवर 29वर आहे. हे जे टेक्स्ट लिहिलेलं आहे मी, हे कट करतोय कंट्रोल एक्स, आणि हा जो हेडर पार्ट आहे याच्यामध्ये मला ते लिहायचं आहे. तर सगळ्यात आधी आपल्याला हेडर पार्ट ॲक्टिव्ह करावा लागतो. टू ॲक्टिवेट हेडर पार्ट, बघा इथे यायचं टॉप मार्जिनमध्ये अँड डबल क्लिक. नाउ यू सी हिअर हेडर and these dots, and here you see this footer. ओके, ये ऊपर वाले पेज का ये फुटर पार्ट है और ये पेज का ये हेडर पार्ट है, राइट. दीज आर टू पेजेस. तो हेडर में मैं लिखना चाहता हूँ एम एस वर्ड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एम एस वर्ड हेडर में. देखो, इसको मुझे चाहिए सेंटर में, तो इसको सेंटर को लेके जा सकता हूँ इससे. पूरा जो फॉर्मेटिंग करना है करो, बॉर्डर देना है बॉर्डर दे दो इन दिस वे, बोल्ड करना है बोल्ड करो, दैट्स इट. तो पहले मैं जो चाहिए तो वो लिख दिया. देन अगेन आई एम कमिंग इन द पेज. देखो ये 3 डॉट्स है, हेडर्स को लिखा है, इसके नीचे आना है ऑन पेज एंड डबल क्लिक. तो ये क्या होगा अभी? देखो एम एस वर्ड यहाँ पे आ गया. जो लिखा था हेडर वो हटेगा। नहीं नहीं, जब मुझे ये चाहिए था ना हेडर पार्ट में, हाँ, तो पहले वाला मैंने कुछ नहीं लिखा था हेडर में, ये है ना इधर, जब आप डबल ये देखो. डबल क्लिक करते हो तो कॉपी हो जाता है। हाँ, नो, डबल क्लिक करने के बाद हेडर पार्ट एक्टिव हो जाता है. You go to header part, then you write anything you want to write and whatever you want to copy on every page. तो यहाँ पे आप जो भी रखोगे वो ऑटोमेटिकली ऑन एवरी पेज गेट्स कॉपीड. समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक आता है. अगर आप हेडर में जो भी रखते हो ना, इसको पहले एक्टिवेट करो, इसमें जो भी रखोगे ऑटोमेटिक वो कॉपी हो जाएगा. 36 पेज है, हम्म. मुझे इसमें से सिर्फ 26 पेज में हेडिंग डालनी है। ओनली ऑन पेज नंबर 26, ओनली ऑन सिर्फ 26 पेज पे। सिर्फ फर्स्ट 26. हाँ, यू कैन डू इट. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट 26 पेज का रखना है उसको, और दूसरा जो चैप्टर है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर तुम्हारा 26 पेज का है, तो उसके लिए एक अलग चैप्टर 1 बनाओ, दूसरा डॉक्यूमेंट निकालना है चैप्टर 2 वहाँ पे दूसरा करना है, इन दिस वे, एंड देन यू कैन मर्ज लेटर. ऐसे कर सकते हो. तो एवरी चैप्टर आपको नया नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, तभी हो सकता है. वरना ऑटोमेटिकली अदरवाइज इट विल टेक फॉर ऑल सेंटेंसेस. तो जो कॉमन थिंग्स रहती है ना, जिसपे चाहिए फुल, अब ये एम एस वर्ड का पूरा लेक्चर है, तो सब पेज पे एम एस वर्ड दिखना चाहिए, तो वही पार्ट मैं इसमें लिख दूंगा डायरेक्ट. ये हेडर पार्ट में आपने ये हेडर पार्ट में लिख दिया तो भी आएगा, और फुटर में लिखा तो भी आएगा. देखो अभी ये जो फुटर पार्ट है, इसमें मैं रख रहा हूँ एक शेप, तो ये शेप रख दिया. विच वन शुड आई टेक? दिस वन. देखो ये शेप मैंने रख दिया यहाँ पे. इस तरह से शेप रख दिया. देखो एवरी पेज पे ऑटोमेटिकली आता है वो, ऑटो कॉपीड. देखो अभी ये हेडर एंड फुटर एक्टिव है, इसको डीएक्टिवेट करना है. एक्चुअली हमें पेज पे जाना है. अब क्या करना है, ये जो हेडर पार्ट है, ये जो डॉटेड लाइन है, उसके नीचे आके डबल क्लिक करो ऐसे. तो अभी आपको दिखाई देगा ये ऑल पेजेस में. दिखाता हूँ आपको साइड बाय साइड. देखो ये हर पेज पे एम एस वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे ये शेप दिख रहा है. ठीक है, तो चैप्टर का नेम, किसी कंपनी का लोगो,
देखो आप अब कंपनी में अभी काम करोगे तो उनका लेटर हेड होता है, हर पेज पे उसका उनका लोगो चाहिए, तो ये ऐसे रखा जाता है, एवरी कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता। यू जस्ट गो टू हेडर पार्ट, यहाँ पे पुट एनीथिंग यू वांट टू पुट हियर, इट विल ऑटोमेटिकली गेट्स कॉपीड ऑन एवरी पेज। अंडरस्टूड? चलो, तो अब ये जो है ना, टेक महिंद्रा दिख रहा है, टेक महिंद्रा स्मार्ट पूरे पेज पे है, देखो जहाँ पे भी देखो उस पे दिख रहा है वो। इसका मतलब ये पूरे जो पोस्टर्स है ऐसे फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे किया है और उसको हेडर में रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है, और कोई कोई सो जाता है। क्यों ऑनलाइन रहना है? क्या ऑनलाइन सर, हाँ, 10 बजे सो जाती हूँ। मॉर्निंग। नहीं, रात कभी ठीक नहीं थी इसके लिए गड़बड़। ठीक है, तो हेडर फुटर कैसे जाना है, हाउ टू एक्टिवेट हेडर फुटर? अरे डबल क्लिक डबल क्लिक वेयर? द पेज, डबल क्लिक ऑन टॉप टॉप ऑफ मार्जिन. द, हाँ टॉप फोनमध्ये करायचं असेल तर या वरच्या जे मार्जिन पार्ट होतो तिथे तुम्ही डबल टॅप करा, यूज युअर फिंगर, डबल टॅप, इट विल बी ॲक्टिवेटेड ऑटोमॅटिकली. If you forget this, then always you can go to insert. Here you have header and footer. See, header and footer. Now there are some ready-made designs for header and footer. देखो, अगर ये चाहिए तो ये भी ले सकते हो. I'm just clicking one. See, ये ऐसे आ जाता है. And here you can write. ऑटो डिज़ाइन रहते हैं, वो आते हैं, सब पेज पे ऑटोमेटिकली आते हैं ये. फुटर चाहिए, अभी फुटर में हमें क्या क्या चाहिए होता है, कभी कभी पेज नंबर डालने हैं, तो गो टू इंसर्ट, और यहाँ पे देखो पहले फुटर पे जाना है. फुटर देखो, ये फुटर है, तो फुटर में बहुत सारा डिज़ाइन भी है यहाँ पे. ये देखो, ये पेज नंबर ऑटोमेटिकली है यहाँ पे. तो सर अब तो नीचे जो पेज नंबर का ऑप्शन है उसका क्या है? कौन सा नीचे का? वही सेम सेम है वो. यहाँ पे भी जाओगे तो ये टॉप ऑफ द पेज, मतलब ये हेडर में जाएगा, और ये बॉटम ऑफ द पेज इट विल गो टू फुटर. सेम थिंग, यू कैन डायरेक्टली. अभी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे पेज नंबर चाहिए, तो इसको मैं डबल क्लिक किया, इसको एक्टिवेट कर दिया. ठीक है, अभी इस शेप पे यहाँ पे मुझे पेज नंबर चाहिए ऑन द शेप. अदरवाइज इफ़ यू टेक डायरेक्टली ये पेज नंबर और ये बॉटम, ये इसका डिज़ाइन लेगा, ये एक तो लेफ्ट में होगा या सेंटर में या राइट में. आई डोंट वांट लाइक दिस, आई वांट द पेज नंबर ऑन दिस शेप. तो अगर शेप में कुछ लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ऑन शेप और ऑन पिक्चर, हाउ टू राइट? टेक्स्ट बॉक्स, राइट. तो जाना है इंसर्ट में, ये है टेक्स्ट बॉक्स. भूल गई, बाष्पीभवन लगेच करायचं नाही. ये टेक्स्ट बॉक्स घ्या, और इसमें आप पेज नंबर डाल सकते हो टेक्स्ट बॉक्स में, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स को हम कहीं पे भी ऐसे मूव कर सकते हैं इजीली. तो इसमें क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट बॉक्स लूँगा ये ऐसे, फिर यहाँ पे मुझे पेज नंबर चाहिए, तो पेज नंबर डायरेक्टली हाथ से नहीं लिखना है, डोंट राइट इट विथ हैंड्स. यू शुड ऑलवेज टेक पेज नंबर फ्रॉम इंसर्ट, और यहाँ से तुम पेज नंबर ले सकते हो ऐसे. तो सर अगर डायरेक्ट टाइप किया तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं करेगा, अदर अच्छा, हम लोग को एक एक जगह एक एक जगह डालना पड़ेगा. देखो ये मुझे यहाँ पे रख रहा हूँ मैं पेज नंबर, अभी ये ऐसे डायरेक्टली ले रहा है, ये 32 आ गया ये. एक्चुअली इट शुड कम हियर इन हेडर में. पेज नंबर, करंट पोजीशन, आई जस्ट पुट दिस वन. नो नो, इसको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, है नाउ इट इज़ टेकिंग रेडीमेड ओनली. मैं ये चेक कर देता हूँ, क्योंकि जनरली इट वर्क्स. तो यहाँ पे पेज नंबर आएगा तो पूरे पेज पे ये डिज़ाइन दिखाई देगा बॉक्स का. आई नीड टू चेक इट. तो पेज नंबर चाहिए तो ऑलवेज यू कैन गो टू इंसर्ट, एंड फुटर में जाके रेडीमेड पेज नंबर रहते हैं, अदरवाइज यू शुड गो टू पेज नंबर हियर इन दिस वे. तो जहाँ पे भी पेज नंबर चाहिए, जिस टाइप का चाहिए आप क्लिक कर दो, इस तरह से आता है 32 पेज रेडीमेड डिज़ाइंस. Main thing is what, if you write something in header and footer, it will get copied automatically to all pages, which is important thing. ये समझ में आ गया? पहले क्या देखा हमने, हेडर एंड फुटर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेडर एंड फुटर. तुम्हाला काय क्वेश्चन आहे का? नो सर. नो क्वेश्चन. अभी देखना है मुझे ये इस पेज को बॉर्डर कैसे लगाते हैं, बॉर्डर.
तो बॉर्डर लगाना है तो आपको जाना है डिज़ाइन में. Okay, and here you have colors, fonts, everything is available here. So here last command, page border. Go to page border, and there are 4 types of borders: box, shadow, 3D, custom. There are many borders, you can select any. So I'm selecting now this box border. इसमें से आपको लेना है उसका डिज़ाइन क्या चाहिए. यहाँ पे है कलर, and here you have width, you can set and press OK. Now you get border for your page, all pages automatically. पूरे पेज को आता है, एक बार कहीं पे भी लगा दो. कहाँ पे है डिज़ाइन में, गो टू पेज बॉर्डर, देन select the box or shadow border. Shadow will give only shadow here, and then select design you want. If you want only right or left border, you can do that. For example, this top border remove, ये top border remove कर दिया, ये bottom border remove कर दिया, only left and right रख दिया. Okay, तो in this way it comes. सर सिंगल पेज लगायचं असेल तर सिंगल पेजला नाही लावता येत, ते सगळ्यांनाच येतं. सर हम्म, हम्म, आपले आपण ते डिझाईनच्या आत आपण जेव्हा नंबर सेट करतो हम्म. तर सगळ्या पेजेसचे जे नंबर असतील ते ऑटोमॅटिक सेट होते. येस येस येस, सगळ्या पेजेसचे होणार. आपल्याला एंटर करावं नाही लागणार. नाही, नाही. ते ऑटोमॅटिक. हां, येस. ओके. तर पेज बॉर्डरला गेल्यानंतर इथून तुम्ही हवी ती बॉर्डर सिलेक्ट करू शकता. 3D हवे तर 3D. वेगवेगळे डिझाईन्स इथे असतात. आणि इथे आर्ट नावाचं एक ऑप्शन आहे, आर्ट. समजा हे नॉर्मल डिझाईन आहेत, हे यातलं कुठलंही नको असेल तर मग आर्टला यायचं आणि इथून तुम्हाला जे हवं ते डिझाईन घ्या. तुमच्या आवडीचं मी घेतो. म्हणजे बाकीचे पण वेगवेगळे डिझाईन्स असतात असे. Go to page border and select from art. There are various designs. If you want only top border and bottom, remove this left and right. If you want only top, you can always do that. See, फक्त टॉपलाच पाहिजे तर टॉपला सुद्धा लावू शकता. प्रत्येक पेजला येतं ते ऑटो. हे लक्षात आले पेज बॉर्डर. हो सर. ओके, आता है नेक्स्ट ऑप्शन पेज कलर. यहाँ पे पेज कलर, तो ये जनरली पेज कलर वाइट रहता है ऐसे. तो कभी कभी हमें पोस्टर बनाना है तो वो पेज कलर या कोई रिपोर्ट बनाना है तो आप उसका कलर चेंज कर सकते हो यूजिंग दिस पेज कलर ऑप्शन. देर आर वेरियस कलर्स यू कैन सेट इन दिस वे. सी, जो कलर आप सेट करोगे वो पूरे पेज पे आता है ऐसे. अगर डिज़ाइन चाहिए तो गो टू पेज बॉर्डर एंड हियर यू हैव मोर कलर्स. तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है, यू कैन सिलेक्ट एनी कलर यू वांट. तो अभी अभी ये ओल्ड वाला कलर है करंट, ये चेंज होगा तो ऐसे होगा. इससे भी ज़्यादा चाहिए तो गो टू पेज कलर एंड हियर यू हैव फिल इफेक्ट्स. तो फिल इफेक्ट्स पे जाना है. यहाँ पे देर आर 4 टैब्स: ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न एंड पिक्चर. कहाँ पे है? डिज़ाइन में, पेज कलर, देन फिल इफेक्ट्स, यहाँ पे जाना है. तो यहाँ पे ग्रेडियंट है, इसका मतलब है एक कलर का ग्रेडियंट, 2 कलर भी मिक्स कर सकते हो यहाँ पे. टेक्सचर है जो रेडीमेड टेक्सचर दिया जाता है यहाँ पे, इससे कोई भी ले सकते हो ऐसे. पैटर्न और पिक्चर, तो 1 बाय 1 देखेंगे अभी. तो पहला है ग्रेडियंट. अभी ये फ़ोन पे नहीं होगा, फ़ोन पे सिर्फ आप प्लेन कलर कर सकते हो, ये कंप्यूटर पे ही होगा. देखो ये 1 कलर है, 1 कलर है, जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट कर दो. फिर उसका जो पैटर्न चाहिए यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. तो 4 पैटर्न आएंगे, उसमें से ये वाला चाहिए तो उसको सिलेक्ट करो. ओके, तो दैट विल बी यूज्ड एज अ टेबल बैकग्राउंड फॉर योर पेज. पूरे पेज पे आता है वो ऐसे. फिर से पेज कलर, फिल इफेक्ट्स, और देखो कलर 1 लिया मैंने, 2 कलर्स ले लिया अभी, 2 कलर्स. ये कलर 1 है, कलर 2 यू कैन सिलेक्ट अदर कलर. फिर आपको ये पैटर्न आ जाएगा ऐसे. तो जो पैटर्न चाहिए उसको सिलेक्ट करो. मैं वर्टिकल ले रहा हूँ ये वाला. ओके करो. नाउ यू कैन गेट दैट शेड्स. तो शेडिंग चाहिए ऐसे कर सकते हो. ग्रेडियंट में आना है, 2 कलर्स. तो 2 कलर्स कोई भी सिलेक्ट कर दो, कलर 1 और कलर 2. पाय माझं मोठलं.
और नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीसेट। यहाँ पे रेडीमेड कलर्स का, ऐसे रेडीमेड कलर्स रहते हैं। तो इसमें अर्ली सनसेट है, लेट सनसेट का डिज़ाइन है। देखो डे ब्रेक, हॉरिजॉन, तो इसमें से जो भी ले लो। तो मैं ले रहा हूँ अर्ली सनसेट। इसमें से भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आपको जो चाहिए उसको सिलेक्ट कर दो ऐसे, ये चाहिए ये ले लो और ओके कर दो। तो यू कैन गेट दैट बैकग्राउंड टू योर पेज। आ गया समझ में? येस सर. ओके. येस सर. आता पेज बॉर्डर झालं, पेज कलर. देन वी हॅव वॉटरमार्क. काय असतो वॉटरमार्क माहिती आहे का? इथे सॅम्पल आहे बघा, समोर दिसते. Watermark is a kind of like logo, छप्पा जो बोलते हैं, like of your company or some name. Yes. That's permanent. Like in photos also. Yes. When you हां. do some effect. राईट. तर वॉटरमार्क म्हणजे काय असतं, समजा तुम्ही हॉस्पिटलला गेला तर त्यांची जी डॉक्युमेंट्स असतात त्या रिपोर्टच्या खाली तुम्हाला असं त्यांचं हॉस्पिटलचं नाव, डॉक्टरचं नाव असं काहीतरी दिसतं. किंवा काही तुम्ही पेपर देता तुमचे, त्या पेपरमध्ये पण डू नॉट कॉपी वगैरे असं लिहिलेलं असतं. तर उसको बोलते हैं वाटरमार्क. तो वाटरमार्क लगाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नहीं तो रहने दो इसको बैकग्राउंड. देखो वाटरमार्क कसा लावायचा. वाटरमार्क के जाना है यहाँ पे. देखो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल, ये डू नॉट कॉपी, ऐसे रेडीमेड ये डिज़ाइन है ऑलरेडी. सो आई एम जस्ट क्लिकिंग दैट. तो ये वाटरमार्क आ गया. Sir, do not copy की जगह कुछ और लिखना हो तो लिख सकते हैं. यस, देखो ये वाटरमार्क ले लिया तो एवरी पेज पे आता है ऑटोमेटिक. तो फॉर एग्जांपल नाउ यू आर क्रिएटिंग दिस डॉक्यूमेंट, तो और आपका नाम यहाँ पे लिखना है आपको, मतलब आपने बनाया इसलिए, या आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आना चाहिए. तो इसके लिए जाना है वाटरमार्क में. यहाँ पे है कस्टम वाटरमार्क. कस्टम, यहाँ पे जाओ. फिर डायलॉग बॉक्स आता है. इसमें देखो टेक्स्ट वाटरमार्क में टेक्स्ट क्या चाहिए, यहाँ पे डू नॉट कॉपी था इसलिए यहाँ पे डू नॉट कॉपी दिख रहा है. तो यहाँ पे जो चाहिए वो लिख दो. तो नाउ आई वांट टू राइट सहायनी, ये अपने सेंटर का नाम, सहायनी ईएमएफ स्मार्ट सेंटर. फिर वो कैसे चाहिए, डायगोनल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए. मतलब देखो ये डायगोनल है ऐसे, हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल, इसको अप्लाई कर दिया तो ये आ गया. तो हर पेज पे ये भी आ जाएगा. उसको डायगोनल चाहिए तो डायगोनल लगा दो इन दिस वे. इसका भी कलर सेट कर सकते हो आप, लेकिन एज इट इज़ वाटरमार्क वो उतना डार्क नहीं आएगा कलर, कि नाम में ही उसके वाटरमार्क है, वॉटर मिक्स होता है उसमें. तो इथे जे आहे टेक्स्ट, याच्यामध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे, जे तुम्हाला लिहायचं आहे ते क्लिक ओके. मग आता हे सगळ्या पेजवर ऑटोमॅटिक आलेलं असेल वॉटरमार्क. इथे बघा. ओके. बॉर्डर, पेज बॉर्डर, कलर आणि वॉटरमार्क आहे. त्याच्यानंतर इम्पॉर्टंट थिंग आहे लेआउटमध्ये. इथे लेआउट ॲक्च्युली वर्डमध्ये काम करायच्या आधी इथे यावं लागतं फर्स्ट. कारण आपल्याला पेजची साईज, समजा हे पोस्टर डिझाईन करायचं तर याची साईज काय आहे हे चेक करावं लागतं, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिंट इट. दिस इज नॉट A4 साइज. ठीक. तो ये आप जब A4 पे डिज़ाइन करोगे और प्रिंट करोगे तो A4 आएगा, ये इतना नहीं, हाँ इतना बड़ा नहीं आएगा. तो जब भी आपको काम करना है पहले पेपर का साइज डिज़ाइन करना होता है, पेपर साइज. उसके बाद पेपर का ओरिएंटेशन, मतलब आपको पेपर वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए. तो ये सब ये लेआउट ऑप्शन में रहता है यहाँ पे. सो फर्स्ट व्हेनेवर यू वांट टू वर्क इन वर्ड, वंस यू ओपन वर्ड फर्स्ट गो टू लेआउट. देन चेक यहाँ पे साइज़ कितनी है. देखो यहाँ पे बहुत सारे साइज़ रहते हैं. लेटर, टैबलॉइड, ये पेपर का साइज़ रहता है. आप जब जेरोक्स मशीन पे जाते हो ना, जनरली A4 साइज़ यूज़ होता है. तो उसका देखो विड्थ कितना है 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर उसका हाइट है. वो हाइट और विड्थ से कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए. तो A4 साइज़ अगर इसको अगर बनाना है तो ये A4 तो नहीं है, तो आपको उसको पहले चेक करना पड़ेगा कितना सेंटीमीटर होगा ये. 1 2 3 90 30 30 30 90 सेंटीमीटर तो होगा वो. देखो आप स्केल अगर वहाँ पे लगाओगे, एक स्केल का कितना होता है, 15 सेंटीमीटर का रहता है.
स्मॉलर स्केल इतना तो होगा ना, एक स्केल लगाया, 1 2 3 तीन, 45. हां 45. तो जर आता धिस पेज आहे, इसका काय बोलते हैं, धिस पेज आहे. नाही नाही, मी कन्फ्यूज नाही होत आहे, ते असं चाललंय ऑटोमेटिक जिभेचं माझ्या. ऑल राइट. तो आपको करना क्या है, इसका विड्थ सेट करना है और पेपर का हाइट. तो उसके लिए जाना है यहाँ पे मोर पेपर साइजेस में. देखो यहाँ पे रेडीमेड पेपर साइजेस रहते हैं, लेटर टैबलॉइड ये, और आपको कस्टम चाहिए तो यहाँ पे जाओ मोर पेपर साइजेस में. तो यहाँ पे आने के बाद आप इसको देखो विड्थ सिलेक्ट कर सकते हो. अभी मुझे विड्थ चाहिए 45 सेंटीमीटर, तो 45 लगा दिया यहाँ पे. और हाइट चाहिए 90, तो यहाँ पे मैं हाइट 90 कर सकता हूँ. फिर ओके करना है. तो ये पेपर बड़ा हो जाता है एक्चुअली. द मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन 26 सेंटीमीटर. तो ओके. सर ये कंप्यूटर नहीं नहीं, ये कंप्यूटर है, पता है ना. तो मैं क्या इतना बोला, बड़ा थोड़ी होगा. इसमें तो कुछ भी हो सकता है ना, ज़ूम इन ज़ूम आउट हो सकता है, लेकिन वर्ड का लिमिट है. देखो अभी मैं वही इसको, मैं कह रही हूँ कि मैं लिमिट होगा. इसमें अभी वर्ड का लिमिट है, ज़्यादातर 55 सेंटीमीटर जाएगा ये. तो मैं एक काम करूँगा, इसको 55 रख देता हूँ. कोरल ड्रॉ में जाओगे तो और ज़्यादा होगा साइज. इसमें जाओगे. कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर. सम मार्जिन माइट आउटसाइड. ओके फिक्स. ये हो गया देखो पेज. अभी ये जो पेज है इस पे आप डिज़ाइन करो, और ये प्रिंट किया तो ये इस तरह का आएगा, आ जाएगा बड़ा वाला. कंप्यूटर पे आप कुछ भी कर सकते हो ना, वो तो ज़ूम इन ज़ूम आउट हो जाता है, पेज दिखेगा इतना, लेकिन वो एक्चुअली वो साइज ऐसा रहता है. चला पेपर साइज कशी लावायची कळली. लेआउटमध्ये इथं आहे पेपर साइज, इथून लेटर टॅबलॉइड यातली कुठली हवी. जनरली हे यूज केले जातात. A4 सगळ्यात जास्त यूज केला जातो. याच्यापेक्षा वेगळं जर करायचं असेल, फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही समजा स्टेशनवर गेलात, किंवा स्वारगेटला गेलात, किंवा कुठेतरी सिग्नलला आहात गाडी, तर ते एक तुम्हाला एक ॲड्स देतात लोक, छोटे छोटे पानं असतात ना. मग त्याची जी ती ॲड जी असते त्याची साईज काय एवढी A4 नसते. नहीं A5. तो आपको मोर साइजेस यहाँ पे जाओ, छोटा है तो उसका करना है. देखो 5 सेंटीमीटर विड्थ और 7 सेंटीमीटर हाइट कर दिया. और इस पे इसको ओके करने के बाद, ओके, अब ये पेपर छोटा हो जाता है. ये क्या बोल रहा है, सेटिंग्स चूज लेफ्ट मार्जिन कॉलम आर टू लार्ज. ओके. वो मार्जिन एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमने यहाँ से डायरेक्ट पहले मार्जिन लगाएंगे. देखो लेआउट और यहाँ पे है मार्जिन्स. मार्जिन काय असतं. मार्जिन हम्म. क्या होता है. हाँ क्या होता है. कॉलम अरे Paper सेपरेट separate order. होल हम्म. into two section to write number or something. राईट. तो नोटबुकमध्ये किंवा पुस्तकामध्ये तुमच्या लेफ्ट साईडला थोडी स्पेस सोडलेली असते, लेफ्ट स्पेस, त्याला मार्जिन असं म्हणतात. राईट साईडला पण असते, टॉपला डाऊनला पण असतं. तर हे मार्जिनची साईज पण आपल्याला चेक करता येते. आता ह्या पेपरला जी साईज लावलेली आहे मार्जिनची, पहिल्यांदा ह्याला मी A4 करून घेतोय, साईज A4. ओके. ओके क्या A4 नहीं बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे दूसरा पेज ले लेता हूँ, स्टूडेंट रिपोर्ट. ठीक है. अभी ये डिज़ाइन किया है, देखो यहाँ पे बॉर्डर भी लगाया है ऐसे. अभी इसका जो मार्जिन है तो ये इतने यहाँ से ये दिख रहा है, दिसते सगळ्यांना तुम्हाला पण ऑनलाईन. आणि Yes sir. हे जे आहे हे टॉप मार्जिन आहे इतकं, टॉप मार्जिन. आणि हा जो पार्ट आहे इतका, हा हे लेफ्ट मार्जिन आहे, लेफ्ट. तर हे सेट करण्यासाठी मार्जिन सेट करावं लागतं. काही वेळेला तुम्ही प्रिंट करायला जाता आणि ते टेक्स्ट व्यवस्थित प्रिंट होत नाही, पेपर वगैरे, तर त्याचा तो प्रॉब्लेम असतो मार्जिनमुळे. सो गो टू लेआउट फर्स्ट, हियर यू हैव मार्जिन ऑप्शन. सी नाउ हियर इफ़ यू वांट नैरो मार्जिन, नैरो, देखो नैरो किया तो उसका मार्जिन का साइज़ कम हो जाएगा. अब ये छोटा मार्जिन बन गया ये.
तो यू कैन सेट मार्जिन्स आल्सो हियर. कस्टम लगाना है तो कस्टम मार्जिन पे जाओ, और यहाँ पे देखो ये जो पेपर है इसको मैंने अगर लगा दिया, टॉप मार्जिन लगा दिया 4 सेंटीमीटर्स, देखो 4 लगा दिया, यहाँ पे चेक करना, देखो ये बढ़ गया. हाँ ठीक है. अभी ये बॉटम मार्जिन है, मतलब नीचे वाला, इसको भी मैंने ले गया 4 सेंटीमीटर. ओके, देखो हाँ ये भी, बढ़ गई। मतलब एक्चुअली ये जो पेज है कितने सेंटीमीटर का है, नहीं A4 वाला कितना, A4 हाँ A4 का हाइट कितना होता है 29 सेंटीमीटर. वो 29 में से मैंने ये 4 सेंटीमीटर ऊपर, 4 सेंटीमीटर नीचे, 8 सेंटीमीटर चला गया. तो जो भी अभी बाकी है वो आप उसमें लिख सकते हो. ओके अभी ये लेफ्ट मार्जिन यहाँ से इधर से यहाँ तक, ये लेफ्ट मार्जिन सेट करना है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लगा देता हूँ मैं, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर. अगर ये जीरो चाहिए वो ऐसे भी लगा सकते हो. अगर, जीरो चाहिए होगा तो आएगा ही नहीं. हाँ राइट वाला अगर मार्जिन नहीं चाहिए तो वो भी कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर. ठीक है. अभी इसको ओके कर देता हूँ. मीटर लगाया सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर करना है. ओके, तो ये अभी मार्जिन सेट हो गया ऐसे. तो पहले मार्जिन भी ऐसे लगा सकते हो, जो चाहिए वो मार्जिन. तो मार्जिन में आ जाने के बाद टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन. ये क्यों सीखना है, कभी कभी आप जब काम करोगे तो आगे वाला जो डॉक्यूमेंट भेजता है आपको, उसके मार्जिन अलग अलग रहते हैं, और आपको जैसे चाहिए वैसे नहीं रहता है. यू कैन ऑलवेज गो हियर एंड चेंज द सेटिंग. तो जो भी टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक अकोमोडेट हो जाएगा उसमें. नहीं तो इतने इतने मार्जिन छोड़े हैं, टेक्स्ट ज़्यादा रखना है टेक्स्ट, तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही टेक्स्ट रख सकते हो आप. ज़्यादा टेक्स्ट रखना है तो मार्जिन कम करो, तो यहाँ पे आके मार्जिन कम करना है, 4 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर 0.5 करो, ज़्यादा टेक्स्ट एक पेज में आ जाएगा. ये हो गया मार्जिन का. फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है गटर. कौन कौन गिरता है गटर में? ये है गटर. पता है गटर क्या है? ये है ना गटर. ये हाँ गटर आई नो, मतलब जो ये जो वो पता रहता है, ना, लेकिन जनरली गटर मतलब ये ऐसा होता है. तो ये गटर मार्जिन जो होता है, क्या होता आहे बघा, तुमचं जे पेज असतं, पुस्तक असतं, नोटबुक, त्याला बाइंडिंग करावं लागतं, बाइंडिंग. ओके, तो बाइंडिंग के लिए थोड़ा स्पेस रखना पड़ता है यहाँ पे, हाँ अदरवाइज इट विल कट. कट द होल मार्जिन. हाँ, वो मार्जिन कट करके लेगा, इसीलिए उसके लिए इसको बोलते हैं गटर पोजीशन. देखो गटर पोजीशन है लेफ्ट, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के और ज़्यादा स्पेस थोड़ा रखना है. इसके लिए देखो ये रख दिया तो ये यहाँ पे बढ़ जाएगा. ये मैंने 0.1 सेंटीमीटर रख दिया है ये ऐसे. तो जब पेज रहेगा ना ये पहले 1 सेंटीमीटर ये होगा बाइंडिंग के लिए, उसके बाद मार्जिन शुरू हो जाएगा, और मार्जिन के बाद एक्चुअल पेज. तो इसको बोलते हैं गटर. ओके कर दिया. तो ये देखो ये पहले वाला 1 सेंटीमीटर रहेगा, ये होगा गटर का. जब ये बाइंडिंग होगा तो ये कट हो जाएगा, उसमें जाएगा. उसके बाद ये मार्जिन मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, और फिर पेज शुरू हो जाता है. तो कभी कभी कैलेंडर होता है तो हम ऐसे ओपन करते हैं, राइट. पेज ऐसे तो ऐसे ओपन करते हैं, तो कैलेंडर के लिए ऊपर रखना पड़ता है गटर का, हाँ बाइंड ऊपर से होगा. हाँ तो उसके लिए जाओ मार्जिन में, देखो, और यहाँ पे है गटर का पोजीशन रखो टॉप में. ये मतलब तुम ऐसे ओपन कर सकते हो, ऊपर से बाइंड होगा वो. तो ये यहाँ पे पहले सेटिंग करना पड़ता है बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन वर्ड. और उसके बाद ये है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप. तो कभी कभी आपको पूरे पेजेस जो है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो इसको ओके कर दो, ये पूरे पेपर्स हॉरिजॉन्टल बन जाएंगे ऐसे, इन दिस वे. लैंडस्केप मतलब ब्रॉड. ब्रॉड ब्रॉड लैंडस्केप. तो यही ऑप्शन यहाँ पे है लेआउट में, ओरिएंटेशन. पोर्ट्रेट मतलब ये वर्टिकल रहता है, देखो पेज वर्टिकल हो गया. कभी कभी आपको अटेंडेंस प्रिंट करना है तो स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर बहुत ज़्यादा रहता है और पूरे मंथ का, तो इसमें ये एक्चुअली अकोमोडेट नहीं होता है, तो उसको सिर्फ चेंज कर दो, ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे जाओ, तो ये ऐसे बन जाएगा. समजतंय का सगळ्यांना? हो सर. येस सर. हम्म. आता नेक्स्ट ऑप्शन आहे कॉलम्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट, कॉलम्स. कॉलम्स काय करतात? न्यूज़पेपर वाचता सगळे? तो Yes, sir. न्यूज़पेपर में समझो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ ऐसे पूरे नहीं रखी जाती, एक्चुअली उसका ऐसे ब्लॉक्स रहते हैं, वर्टिकल ब्लॉक्स, तो उसको बोलते हैं कॉलम्स.
तो अभी समझ लो ये न्यूज़ है, लिखा है कुछ, और इसको हमें 3 ब्लॉक्स करने हैं, तो उसको बोलेंगे कॉलम्स। देखो ये पहले एक ही कॉलम है, ये पूरा रखा है, मैंने 2 कॉलम्स कर दिया, तो ऐसे 2 कॉलम्स बन जाता है उसका। तो ये ऐसे एक्चुअली में देखो ये न्यूज़ शुरू हो गया, एंटर द टेक्स्ट, इसका लास्ट पेज कहाँ पे है, एंड अदर, ये ऐसे 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 जाएगा। अभी जब मैं आई सिलेक्ट इट एंड गो टू 2 कॉलम्स, तो देखो ये गैलरीज के बाद ये ऐसे कंटिन्यू होगा, 2 पैराग्राफ यहाँ पे आ गए, आगे का पैराग्राफ नेक्स्ट कॉलम में चला गया। 3 कॉलम चाहिए, गो टू कॉलम्स एंड 3, 3 कॉलम में वो जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली इट एडजस्ट टू 3 कॉलम्स। इससे ज़्यादा कॉलम्स चाहिए, अगेन गो टू कॉलम्स एंड मोर कॉलम्स। यहाँ पे आने के बाद देखो 1 2 3 वही ऑप्शन है ये यहाँ पे ओपन हो रहे थे, अभी यहाँ पे है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑप्शन, तो 4 चाहिए तो 4 ले लो, यू कैन सी इट हियर। 5 चाहिए 5, जितना भी टेक्स्ट है उसके 5 कॉलम बनाना है। ओके, तो ऐसे 5 कॉलम बन जाते हैं। अभी इसको आप बॉर्डर रखना चाहिए या मिडल में कुछ रखना है वो भी कर सकते हो। तो इसका पहले मुझे फर्स्ट सिंगल कॉलम बनाना है, एक कॉलम बनाना है, तो उसके पहले टेक्स्ट सेलेक्ट कर दो, गो टू कॉलम्स एंड 1, और मोर कॉलम्स 1 कॉलम बना दो, ये फिर से ऐसे 1 कॉलम हो जाता है। 4 या 5 कॉलम बनाने हैं, सिलेक्ट द टेक्स्ट, गो टू कॉलम्स, मोर कॉलम्स, एंड हियर यू कैन सिलेक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स 5। तो इसमें भी 2 कॉलम में जो स्पेस रहता है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये कॉलम का विड्थ है, ये अंदर का स्पेसिंग है 1.25 सेंटीमीटर, तो ये कम करेंगे तो ज़्यादा टेक्स्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो आई एम पुटिंग इट 0.3, और ये इतना पास पास आएगा तो उसका थोड़ा सेपरेशन के लिए यहाँ पे एक लाइन बिटवीन का ऑप्शन है, लाइन बिटवीन, इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे लाइन आ जाती है। देखो ये लाइन आ गई, मतलब ये अभी कॉलम ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से ऐसे जाएगा, इसको बोलते हैं कॉलम तैयार तैयार करना। कभी कभी आपको ऐसे डॉक्यूमेंट आएंगे वो एक्चुअली कॉलम में रहेंगे, आप कॉपी करते रहोगे वो सिलेक्ट ही नहीं होगा, आगे वाला सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली ये 5 कॉलम है। लाइन आ जाती है तो फिर पूरा एक साथ सिलेक्ट नहीं होगा। हाँ नहीं होता है इस तरह से। ये डबल क्लिक की, देखो ट्रिपल क्लिक किया तो ये पैराग्राफ, एक सिंगल पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो कभी कभी ये कॉलम्स आपको निकालने पड़ते हैं, यू वांट सिंगल कॉलम, तो सबको सिलेक्ट करके पहले ऐसे कॉलम में जाना है और इसको 1 बनाओ, तो फिर से वो 1 हो जाएगा। फिर इसको यू कैन एडिट और मॉडिफाई इजीली। चला हे समजलंय व्यवस्थित काय काय आहे? हो सर. ठीक आहे. सर ते लाईन असताना आपण सगळं सिलेक्ट नाही करू शकत, तर आपण कसं काय केलं? नाही नाही करू शकतोस, लाईन असताना पण करता येतं. ओके. हां, आपण हेच फोनवर कसं करायचं बघूया आता, कारण तुम्हाला जनरली फोनवरच करावं लागतं. लेट मी कनेक्ट ऑन फोन. फोनचा स्क्रीन दिसतोय माझ्या? फोनचा स्क्रीन दिसतोय तुम्हाला? Yes, sir. येस सर. ओके गुड. तर आपण जाऊया आधी वर्डला. दिस इज वर्ड. इथून आपल्याला जर नवीन फाईल तयार करायची असेल तर वर टॉप साईडला प्लस साइन आहे, प्लस, यू कॅन क्लिक ऑन प्लस and take blank document, first option, this one, blank document. Okay, now I want here a random paragraph. How to take it? कुठला एक पॅराग्राफ घ्यायचा आहे.
Using your two fingers, you can zoom in, zoom out that page in this way. रँडम पॅराग्राफ कसा घ्यायचा? सर इज इक्वल्स टू रँड आणि 2 ब्रॅकेट्स. करेक्ट दोन आहे. ब्रॅकेट रँडम पॅराग्राफ घेण्यासाठी पहिल्यांदा इक्वल साइन, देन RAND, देन ब्रॅकेट रख दो. ये RAND और ये ब्रैकेट दे दो. उसमें स्पेस नहीं चाहिए. ऐसे लिखो और प्रेस एंटर, यू विल गेट पैराग्राफ्स इजीली. तो इस पे आप अभी काम कर सकते हो. तो मैंने पहले इसको सिलेक्ट कर दिया, 1 2 3 किया तो पूरा पैराग्राफ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है. ट्रिपल टैप करना है कोई भी पैराग्राफ पे. तो 1 2 3 कर दिया तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है. पूरे सब कुछ सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल ऑप्शन है ऊपर इस पे. देखो ये सिलेक्ट हो गया. अभी इसको अगर बॉर्डर लगाना है या हेडर फुटर लगाना है ये भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल पहले हेडर फुटर देखेंगे. फर्स्ट गो टू मेनू. मेनू में जाने के लिए डाउन देखो सबके नीचे यहाँ पे आपको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन दिख रहा है. उसके एंड में एक ट्रायंगल है, स्मॉल ट्रायंगल विच विल ओपन मेनू इन दिस वे. तो यहाँ पे दिख रहा है अभी होम मेनू. होम मेनू से जाओ लेआउट मेनू में. देखो ये लेआउट मेनू में यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है मार्जिन. तो ये मार्जिन में जाओ. आप यू कैन सिलेक्ट मार्जिन या कस्टम मार्जिन यहाँ पे ले सकते हो. जो मार्जिन चाहिए ऐसे सेट कर दो 1 सेंटीमीटर. और ये लेफ्ट का 1 सेंटीमीटर टॉप था. कस्टम मार्जिन आप सेट कर सकते हो इजीली. सबको सेट कर दिया. अभी टिक मार्क ऑन कर दो. ये हो गया मार्जिन का. कहाँ पे है? मेनू, देन गो टू लेआउट. तो फर्स्ट ऑप्शन है मार्जिन का. उसके बाद है ओरिएंटेशन. ये जो पेपर है आपका वो कैसे है? एक्चुअली ओरिएंटेशन फ़ोन में चेंज नहीं कर सकते. ये व्हेन आई क्लिक इट नो, यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है टॉप में. देखो माइक्रोसॉफ्ट 365 फीचर, गेट दिस फीचर एंड मोर विथ अ सब्सक्रिप्शन. तो आपको ये बाय करना पड़ता है लेकिन ज़रूरत नहीं है. इसमें सिर्फ आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली लगाना पड़ता है. तो जस्ट लीव इट. उसके बाद है साइज़. देखो साइज़, पेपर का साइज़ आप सेट कर सकते हो. जनरली वो A4 रहता है, A4. और दूसरा कोई साइज़ चाहिए तो साइज़ में जाके you can change. Now here you cannot put size on phone but on computer you can change. ये हो गया साइज का. कस्टमाइज नहीं कर सकते ना, ज़्यादा कस्टमाइजेशन फ़ोन पे नहीं है पॉसिबल. उसमें तो पहले से प्रीसेट वाले हैं. प्रीसेट वाले हैं. जनरली ज़्यादातर वर्ड का अच्छा काम होगा कंप्यूटर पे ही, इसीलिए. फिर उसके बाद है ये कॉलम्स है. कॉलम्स देखो ये कॉलम भी एक्चुअली इस पे फ़ोन पे नहीं यूज़ कर सकते हो. वो सिर्फ आपको कंप्यूटर पे ही करना पड़ता है. तो ये ऑप्शन हो गए. फिर से लेआउट में जाएंगे. ये मेनू ओपन हो गया. अभी यहाँ पे ड्रा में जाएंगे. देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन आई थिंक इसको होम में जाके इंसर्ट, इसमें हेडर एंड फुटर यहाँ पे है. देखो इंसर्ट मेनू में जो आपने आज सीखा था हेडर. तो हेडर में लिख सकते हो. एक्टिव हो गया हेडर. यहाँ पे मैंने लिख दिया. तो ये सब कुछ में जो भी पेजेस है उसमें से आ जाएगा ऑटोमेटिकली. हो गया. अभी पेज पे डबल क्लिक कर दो तो ये हेडर, अगर मैंने नया पेज ले लिया यहाँ पे एंटर करके ऐसे, देखो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो नया पेज आ जाएगा ऑटोमेटिक. देखो ये सेकंड पेज पे ऑटोमेटिक ये दिख रहा है साइनी TMF. तो ये है हेडर फुटर. कोई भी पेज का फुटर चाहिए तो फुटर में डबल टैप कर दो. फुटर एक्टिव हो जाता है यहाँ पे ऐसे. एंड देन यू कैन राइट एनीथिंग हियर. फॉर एग्जांपल हियर आई एम गोइंग, फुटर एक्टिव कर दिया. फिर ये फुटर का मेनू दिख रहा है यहाँ पे. मेनू में ये देखो हेडर एंड फुटर का मेनू दिख रहा है. होम में जाओ, होम का दिखता है. अभी हेडर एंड फुटर एक्टिव किया तो इसमें ये हेडर एंड फुटर दिख रहा है जिसमें आप पेज नंबर सेट कर सकते हो, पिक्चर जो भी चाहिए. तो आई एम गोइंग हियर फॉर पेज नंबर. देखो पेज नंबर कहाँ पे चाहिए? टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट. तो मुझे पेज नंबर अभी
बॉटम को चाहिए तो इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। दैट्स इट। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेज नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये पेज नंबर 1 आ गया है और इसका पेज नंबर 2। इसको थोड़ा जूम करूँगा। देखो ये नंबर 1 है, फर्स्ट पेज का पेज नंबर, और सेकंड का ये जो मेनू है इसीलिए वो नहीं दिख रहा है। हाँ अभी दिख रहा है, पेज नंबर 2। और टेबल अगर बनाना है तो इसमें जाके जो भी कंप्यूटर पे आपको मेनू दिखते हैं ये यहाँ पे ऐसे दिखते हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ। तो इंसर्ट में जाके यहाँ पे है टेबल। देखो ये ऑलरेडी ऐसे टेबल आ जाता है, रेडीमेड टेबल। यहाँ पे इट विल नॉट आस्क यू, फिर भी आपको चाहिए तो यहाँ पे एक बार टेबल आ गया। कित देखो टेबल को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे, पेज को। कितने कॉलम है अभी इसमें? 3 कॉलम्स और 3 रोज है। ओके, अभी इसको सिलेक्ट करना है, फर्स्ट या सेकंड कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है। तो कॉलम के ऊपर एक ब्लॉक रहता है, उस पर टच कर दो। यहाँ पे देखो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। ऊपर का जो भी ये सेल है उसको सिलेक्ट कर दो, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। रो सिलेक्ट करना है उसको भी, इस साइड को, लेफ्ट साइड को, आउटसाइड दैट टेबल यू हैव दिस ऑप्शन। देखो इसको सिलेक्ट कर दिया तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाता है ऐसे। कट, कॉपी, डिलीट जो भी करना है कर सकते हो इसको। देखो डिलीट कर दिया, रो डिलीट हो गया। अभी रो इंसर्ट करना है इसके नीचे, तो उसको पहले रो नंबर 2 पे कर्सर है। नाउ टेबल का मेनू दिख रहा है नीचे, यहाँ पे जाना है इंसर्ट पे। नाउ इट विल आस्क यू कॉलम चाहिए या रो। नाउ आई वांट टू ऐड रो बिलो, सो इंसर्ट बिलो, इस पे क्लिक कर दो। जितने रो चाहिए आप ले सकते हो ऐसे। कॉलम चाहिए एक्स्ट्रा, कॉलम भी ले सकते हो टेबल बनाने के। तो देखो 3 कॉलम है यहाँ पे, ज़्यादा कॉलम चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके देखो आई एम कीपिंग कर्सर ऑन सेकंड कॉलम। फिर जाना है यहाँ टेबल मेनू में, ये जो है टेबल मेनू। फिर इंसर्ट एंड कॉलम लेफ्ट को चाहिए या राइट को चाहिए, यू कैन डिसाइड। सो आई एम टेकिंग इट टू द लेफ्ट। इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट लेफ्ट। नाउ यू कैन सी आई एडेड 2 कॉलम्स, तो 5 कॉलम हो गए इसमें से। तो ये जो अभी मैंने कॉलम सिलेक्ट किया है सेकंड वाला, उसको सिलेक्ट करके उसको मर्ज करना है। तो टेबल मेनू में इंसर्ट के नीचे मर्ज सेल्स दिख रहा है, तो इसको ऐसे मर्ज कर सकते हो। पूरा कैसे हो गया वो, इसको कैंसिल कर देते हैं इससे। ठीक है, जितने भी सेल्स आपको मर्ज करने हैं उनको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले। देखो ये मैंने सिलेक्ट कर दिए, 6 सेल्स आई हैव सिलेक्टेड। देन टेबल मेनू मर्ज सेल्स, तो ये ऐसे मर्ज हो जाएंगे। ये थोड़ा अलग दिखा दे रहा है, आप अपने फ़ोन पे ट्राई कर दो। आज मेरा कंप्यूटर भी सही से काम नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, क्यों? जैसे मर्ज था वैसे आपको यहाँ पे स्प्लिट सेल्स भी है, फिर टेबल स्टाइल्स है, शेडिंग है, सब कुछ देखा है। देखो टेक्स्ट रोटेशन। तो जब टेबल बनाना है तो ये सब ऑप्शंस यूज़ करना है आपको। सर इस सब में सब्सक्रिप्शन लगता है? नहीं नहीं, जिसको सब्सक्रिप्शन लगता है वो डोंट यूज़ इट। जो एक्चुअली फ्री में अवेलेबल है तो उसको यूज़ करना है। सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाएगा, आपका अगर स्टूडेंट आईडी है तो। मतलब आप जिस कॉलेज में रहते हो ना, विच कॉलेज, आप तुम्हारा कॉलेज कौन सा, अभी नहीं है क्या? जो भी कॉलेज है, तुम्हारा कौन सा कॉलेज था पहला? गुजरात, यहाँ नहीं। नहीं रहने दो कोई भी। हाँ, अरे बोला तो सही, सीयूषा। सी यू शाह, सी यू शाह। तो उनका एक आइडिया ये रहेगा ना वेबसाइट। हाँ। तो तुम्हारा होगा किंजल शर्मा एट cushaha.com। तो अगर ऐसा आपका ईमेल आईडी है तो ये सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर लेते हैं हाँ, तो अगर है तो ले लो, कोई बात नाही। तो कर लेते हैं फिर तो। चला आता समजले कसं टेबल यूज करायचं आहे फोनवर? हो सर. हां, मग ते टेबल लवकरात लवकर शेअर करा. मी दुसरं एक असाइनमेंट देणार आहे.